Ane. Oke, siapa madam? Oke, diri madam. Evin ma, woga dolo ke anda ma, dolo parti grup aja. Oke, woga dolo ke senior asap kata. Oke, woga GPC. Oke, woga gamela aja. Adu, ma saden ba, woga yung ay. Beberapa pakar, mui jawab ne, pas baca pun sari-sari bayi. Ada persi dolo ba medam bahaya enggak unta mungkin ma alawon ne nomi obida ko kare game itu ma alawon ne kare kira albe asapo oke nyam ne kurang albe medam ne dur game itu क्योंकि अधिक समय लाला ma nunde hi jami wopung ge kla sare ba adna ma adiwa anak katam oke go asapo senior katam adigo kobor odigo ikam medam emergency bika ko manguni ja hi emergency pun ma nomsin ngunu saksa wa ini jarula jima oke time sin nunne kamala pen la I aja mengto la aldo amiom adigo ngunu kare kila niom ba duri ki polo aldo menum duri tu emang gua anak kata membina ijane ejenda ya kama oke gua asam kata I ejenda ya kama apa maya hindate ko kama oke munu medam munu apa munu tekun takalas ka ija jeba men jeba ngunu Facebook lo kanyam la mani keji ama munu mani delibol indulo ba ngunu kala अब काली इनमें मोबाइल लो पूरा टीवी लो काजा में तो मंगुनु मैडम ने यादा की लाइट पर का काजा लही माउ में मैंने हयू काजू मंगुनु का ये नाम लोग आप ये अच्छा आपको ना मोबाइल ना मैडम आऊंगा ना आज वो आप हिप्पो दिरो तो कल लोग कुम लगा मैं अलू तो मैडम नो मुनु को इधर मुनु का एमपी कैंडिडेट बहाजला मुनु को देखो को हाल किला asabongat damne o nyam gadamne taiwa dam anyabe gadamne kale tale kari kita no time mo lale le hajna mo sin no abyam gadang na en no ka gunu yenam dun ma kin kala abu tv no ngun kanya na toto o kemani ga no polo ka delhi mo ka gunu ka no peden mo sin da boksin o oxing mo hin imban la program mo kala en mo ati mo family polling ka to ko mo ka ne kelni no le into o ka gumnya kam si en gunu au me na planning na en mo ati nam lo ati polling ka to kai inlah pemato mengunu abu ya dulu higi mereka lah nomne oksomo yok tu nomsin MP hatom namun memato munu medang guru orna sol laga ba awat gaya gol laga ba nimgat gaya nijil gaya gol laga ba dulu mu orna sol laga min nom abu ya ba nom munu alja medang na munu ka hogo dulu go aligila hamba alig dola abu ya munu ka candidate kare kila hamba gumino ne kare kiyo munu Huyunga tu kumna ini, nomne yogi dakom MPM ne, nomne asirbat tidang. Anya me guru pigi, nom asirbat tid batu, asap tu ngadi atu, ijamet ba asap bola hit ayga advance, munga khobor lala ipolo, malba nom duri golpe deri muntai tolpe. Ijai suddenly ada mantangan dame iko, mo polu lidram ne, oke 40% ne ekdom ayam tena kotka medapun hado. At least pun anjigara aji wakare kila jukol. Time me plan lempan me, en me toka hajna me aljam bedang na. Thank you madam. Me no de business kayam ne yogi ke no agenda ya kamai. Oke no jab kage oke mo ke dolu anak sai toka akenani go ai no batakalam ngenang kayam benu na ume. Sin jam to me mo jam je oke nunu agam no de mo kuyum hi tapem la dulu na. Thank you. एकदम दिल से धन्यवाद है स्पेशली आपको कहते इतना अभी 7 बज गया है हमला से नून के माने जो एक एनर्जी लेवल एंथुसियाज्म Akong tak ya, Bika. इतना प्यार और इतना जो एक्साइटमेंट का साथ में आप लोग बेटी के लिए बहन के लिए मैंने कार्य किया नून गए इतना तकलीफ से मैंने रोया लगा मेरे बहुत मेरा लिए ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और साथ ही साथ वो
party nun itna dress se kake na upai kama mono standard upai kama mun jहाँ में भी होए mun anyam duk si mane kake याद ना है उसी याद ना anyam दूधा कुमारी कम तो बहुत रुका सका लगता है ना इसलिए अब होता नहीं चिन लोग पुराना जमाना टिकी बनाया है अब एकता वाला एकता वो मोलिन ना मना ना मंगुन मने अन पार्टी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वो उल्टा पुल्टा कॉकटेल आगुम में जाप न नहीं मैंने पूरा पूरा अरुणाचल का लैंग्वेज जो मेरा टांग में मिक्स होके बेच दिया है अच्छा से बोलेगा सुनने से भी कभी उधर से निकल जाता है अब ना मैंने वो मेंकेन से हम यो वशिन काम मानो नारू है सेंगम रो को ये वो स्टार्टिंग होगा ना लगी जा नाम क्या बंगो यो मधुने यो जागुने यो मिंदुने यो रुदुने अब नुन नारू है सेंगम रो को कामम रो को यो वशिन वो रिपीट मोशन काम मा सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक दो कंफ्यूजन है जो मार्केट में इजा हो जीव एक तामाने लोकसभा कैंडिडेट बंगो जीव दागरा ब्रेकुने उई ओपोंगा नाए उई ओपोंगा माने सॉफ्ट निगलुग निगा कोलुग कोराम कोने माने नीगा आल नेबे उपु मल अपना मलेंगा माने मदार म पारबो मादु में ने बेना म एकता गो तुंतु अगम आनी गो पॉइंट बाय पॉइंट टाइम मशीन माने शॉर्ट दो लगा पॉइंट बाय पॉइंट आनी गो 2-3 पॉइंट हम क्लियर most somela og laga nun samne songo asipan manae tol disi office tolo permission ko kana mane allaba alom rubba mula permission ko tala ngok ke timam बेजाय ना परमिशन हम 48 आवर्स प्रायर मांगना है उसका नीचे में मांगने से नहीं देगा अहमियत को लाना आज एक चौमरूप लोगों में हम कौन सा ना दूर जगह में जा रहे हैं अपना ही गांव में अपना ही माता पिताजी को मिलने जा रहे हैं ना तो अनोपी से जी एक घर में हम एक अपना परिवार का साथ थोड़ा सा गपशप दिल का सोच विचार दुख तकलीफ को बात कर लेगा सोच के इसलिए वो आप लोगों के पास आया है अब ना मैं कैंडिडेट लोकसभा कैंडिडेट बरुकाला लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट हाउस है 543 मेंबर दो इंडियन इंडिया इज ए कंट्री जो कंट्री उरासो एकता कानून होता है हर जैसे हम लोग का गालो कम्युनिटी का भी GWS का भी एक सर्टेन बायलॉ होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वैसे ही हम लोग का इंडिया का एक बायलॉ होता है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से इंडिया में गवर्निंग सिस्टम होता है गवर्निंग सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट एक होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक लोकल सेल्फ मेड गवर्नमेंट होता है पंचायती राज 3 प्रकार का गवर्नमेंट होता है तो 3 प्रकार का गवर्नमेंट में दोनों लेवल है पंचायती राज गवर्नमेंट से शुरू होता है स्टेट लेवल है MLA से शुरू होता है और नेशनल लेवल है MP से शुरू होता है अब नाम माने सी पंचायत इलेक्शन है आदि करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो और MLA इलेक्शन है लेजिस्लेटिव माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन दूसरा स्टेट में MLA और MP एक साथ नहीं होता है बहुत रेयर होता है एक दो स्टेट में ही होता है नॉर्मली सब स्टेट में विधानसभा अलग होता है और लोकसभा अलग होता है लेकिन हम लोग का यहाँ स्टेट में हम लोग का अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश ओडिशा और गोवा ये 4 स्टेट में लोकसभा और विधानसभा साइमल्टेनियसली पोल होता है तो इसलिए यहाँ में लोगों को लगता है कि लाइन से जाना है बोल के ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लाइन से जाना है बोल के तो कोई सिस्टम नहीं है मैंडेटरी नहीं है कानून नहीं है MLA जो हम लोग का अपना घर का इलेक्शन है आप जो लीडर का विजन अच्छा है जिस लीडर का डिटर्मिनेशन क्लियर है आपको लगता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं वो लीडर को आप चुन सकते हैं उसमें आपका MLA को जिस XYZ पार्टी से आया होगा चाहे वो रूलिंग से आया हो या अपोजिशन से आया हो किसी भी पार्टी से आया हो आप अपना पसंद से MLA को चुन सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस पार्टी का MLA को सिलेक्ट कर रहे हैं उसी का साथ लाइन में होलसेल में MP को भी जाना है बोल के ऐसा नहीं है MP जो टोटल ये डिफरेंट है तो वो उसको हम क्लियर करना है एक नंबर में कि MP आप उसको बना के भेज रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट हाउस में आउट ऑफ 543 लोकसभा मेंबर में हम लोग का अरुणाचल का पास 2 कोटा है ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 सीट है तो ईस्टर्न पार्ट में हमारा 27 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदर में मोर देन 3 lakhs पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन 3 lakhs ट्राइबल पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट को कवर करता है और उससे ज्यादा वाला पार्ट हम लोग का 33 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर देन 4 lakhs ट्राइबल इंडिजिनस पॉपुलेशन जो यहाँ बसता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वेस्टर्न पार्ट में तो यहाँ में हम लोग का थोड़ा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एरिया भी थोड़ा ज़्यादा वास्ट कवर हुआ है और हम लोग का यहाँ थोड़ा मतलब चैलेंज भी थोड़ा ज़्यादा है टफ है अब ना मैं एंटायर नॉर्थ ईस्ट में ये जो अभी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी है ये एक प्रेस्टिजियस सीट है प्रेस्टिजियस सीट इसलिए है क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो अभी का जो सीटिंग मेंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी तो हाल फिलहाल में नहीं है कुछ दिन पहले इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले वो था ना तो इसलिए उसको फॉर्मर ही बोलना पड़ेगा फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जीजाजी जो हम लोग का यहाँ से जो जीत के हमेशा जाता है, 4 बार वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसमें से 3 टाइम वो विन हुआ है। हम लोग ही उसको विनर बनाया है ना। हम तो खुद उसका हार्डकोर सपोर्टर था, अभी नहीं है। तो अमरीना मैनून माने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी माने यूनियन कैबिनेट में इंडक्ट किया है, जिसका वजह से उसको यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस मिला। उससे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, फिर यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस मिला है। उसका बाद में अभी क्या था, ये आर्ट एंड साइंस और फूड प्रोसेसिंग ऐसा कुछ दिया है। तो इसलिए मैंने एंटायर नॉर्थ ईस्ट में ये सीट को ज्यादा लोग देखता है, जितना हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना, तो ये सीट को ज्यादा लोग देखते हैं। और इसका जो चेहरा है वो मैंने बहुत बड़ा चेहरा बन के इंडिया में घूमता है, किरण रिजिजू जी का नाम जो ना, तो उसको एक बीजेपी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा एक सीनियर लीडर भी मानता है। इसलिए यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है। तो इस चैलेंजिंग में जब मेरा जैसा एक ऑर्डिनरी आप सबका बीच से निकला हुआ एक बेटी, मैंने एकदम कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बेटी जब उसका अगेंस्ट में स्टैंड करता है, तो लोग बहुत हैरानी से देखता है, बाहर वाला देखने वाला लोग ना, ये इतना छोटा सा मिर्ची, हम लोग अंग्रेजी में बोलता है कुचिक टायर ना, एक तो मिर्चा ऐसे छोटा होके बहुत जाल होता है ना उसमें डालने से, कोटिया कोटिया होके, वो मिर्चा का लड़ाई एक तो ये हाथी मिर्चा एक होता है ना, हम लोग इसी में इंदुक बोलता है। अब ये निकालो में क्या मान ये लोग तो छोटा मिर्ची पुचिक तैयार और मान ये लोग का कैसे लड़ाई हो सकता है। आदमी ऐसे सोचता है, तो इतना बड़ा हस्ती को एक ऑर्डिनरी लेडी जो कैसे लड़ सकता है बोल के। तो इसलिए हमको उस दिन भी बहुत बार मीडिया लोग पूछा था आप कैसे हिम्मत किया है बोल के ना। व्हाट्सएप में भी मीडिया लोग हमको इंटरव्यू लेता है, मैसेज लिख के ना, मैडम आपका पास टाइम नहीं होगा इसलिए हम लोग व्हाट्सएप का माध्यम से इंटरव्यू मांग रहे हैं बोल के। इतना बड़ा हस्ती का सामने में आप खुद को एक कैंडिडेट बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है हमको पूछा है लोग ना। तो हम उसको सिंपली लिखा है, हम लोग जितना हो सके हमेशा हम लोग एक लीडर को, एक अच्छा लीडर है उसका विजन को देखते हुए, उसका बातचीत को सुनते हुए, उसका बहुत ज्यादा सोच विचार अच्छा सोच के उसको हम लोग हमेशा प्रोजेक्ट करके उसको हम लोग बिना किसी कंट्रोवर्सी का, देयर वाज नेवर कंपटीशन। एक बार कोकाई आची संजय एक बार उसको हराए थे ना, तब शायद तब भी उस समय भी 11 तो एमएलए सीट जो अनकॉन्टेस्ट हुआ था, तो 11 तो एमएलए सीट अनकॉन्टेस्ट उस समय भी शायद किरण जी जीते थे होंगे, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट कुछ करके उसको फोर्सफुली, पब्लिक ने तो अपना तरफ से जिताया था बट काउंटिंग में वो हार गया। अदरवाइज वो 4 बार कंटिन्यूस ही जीतना था, और 3 बार में तो जब भी वो जीता है उसका कंपटीशन का टक्कर का तो कभी भी लीडर नहीं आया है। हम लोग ऐसा ऑप्शन मतलब लगा ही नहीं कि वो किरण जी को हरा सकेगा, या पब्लिक लोग कभी उसको छोड़ के इस तरफ हटने का मन नहीं किया। मैं खुद भी ऐसा ही था, उसको सपोर्ट कर ही रहा था, चलो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नेता है, कम से कम नेशनल लेवल में जाके हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरुणाचल का नाम को ऊंचा कर रहा है, हम लोग का लोगों को लोग उसका थ्रो से जान रहा है, ये सोच के हम भी सपोर्ट कर रहा था। कहाँ में वो माइनस हो जाता है, मेरा पूरा प्यार इज्जत और समर्पण उसके लिए जो था वो कहाँ में खत्म होता है, जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश से मैं तो चलो एक इशू को लेकर के करप्शन को हटाना है बोल के जिद्दी करके गवर्नमेंट को डिमांड करके अरुणाचल से दिल्ली तक का सफर में निकला है। तो उसको देखने के बाद में जैसे अभी ये बहन जी ने बताया कहानी पूरा आप लोगों ने नरेट किया, उस दौरान में कुछ महिला लोग वहाँ दिल्ली में पहुंचा है। तो जब दिल्ली में पहुंचा, हम लोग ये आने वेस्ट सियांग से भी बहुत ज्यादा महिला लोग आए थे, पहुंचा है, हम भी एक महिला है, हमारा जैसा अपना बहन को अपना बेटी को वहां में क्यों इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है, क्यों इंसल्ट कर रहा है, सोच के आने लोग साथ देगा बोल के पहुंचा है। तो वहां का दिल्ली का आदमी लोग ऐसे ट्रीटमेंट किया जैसे कि लाइक मतलब एक अलग प्लैनेट से एलियंस लोग आया है जैसे ना। ऐसे में हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न आदमी को अरुणाचल, चाहे अरुणाचल हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, जहां से भी हो, हम लोग जैसा चिंकी आइस वाला, नाक चक्का वाला होता है, नेपाली दाजू कहाँ से आया है ऐसे टाइप का ट्रीट करता है। तो ऊपर से मेरा आने लोग वहाँ वीरवार में 200 प्लस में आ गया, पूरा मैंने एक आने पे सब करने बैठने से 200 पुलिस का राग करता है, थोड़ा इधर मूव करने से भी जाता है, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत वो अजीब सा था, बहुत एम्बैरेसिंग था वो सिचुएशन। आप लोग तो उतना ही देखा है जो वीडियो में दिखाया गया, और कितना ऐसा सीन रहा होगा जो वीडियो में दिखाने लायक भी नहीं रहा होगा ना, तो आप लोग फील कर सकते हैं। उस समय में हम लोग का सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद और आखिरी सहारा था हम लोग का ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उस समय का द देन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो उसको हम लोग उम्मीद किया कि वो आएगा, बचाएगा, मतलब कुछ गलती तो किया नहीं है मेरा आने लोग, चोरी नहीं किया है, वहां जाके मारपीट नहीं किया है, झगड़ा पूरा नहीं किया है, शांति से ट्रेन स्टेशन में पहुंचा है, ट्रेन से नाम रहे तो पूरा पुलिस लोग घेराव कर दिया, बिना रीजन का, बिना गलती का वहां में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। और उस अत्याचार का दौरान में
मैं भी वहां अरुणाचल भवन में पहुंच करके वो टेंट को क्यों तोड़ा है, 2 दिन जब बना रहा था तब आप लोग मत बनाओ, डायरेक्ट नहीं बोला है। इतना बड़ा बड़ा ट्रक में टेम्पो में सामान भर भर के वहां अंदर घुसा के, मेन गेट एक ही है, उधर में गेट में गार्ड भी खड़ा है, तो वहां से घुसा के टेंट बना रहा है। आप लोग 2 दिन आराम से बनाने दिया, कुछ नहीं बोला। टेंट कंपनी को हम लोग जहां तहां से डोनेशन जो हमको आया वो पैसा से इकट्ठा करके टेंट कंपनी को पेमेंट किया है। टेंट बना के खत्म होने के बाद रात को 10:30 बजे दिल्ली पुलिस आके पूरा टेंट को मयक मसक कर दिया, तोड़ दिया। तो ये तो इंटेंशनली नहीं है कि आप लोग देखिए, शुरू में डायरेक्ट बोलना था दिस इज ए रेस्ट्रिक्टेड जोन, वीआईपी एरिया है, यहाँ पब्लिक मूवमेंट बिल्कुल मना है और टेंट लगा के आप बैठ ही नहीं सकते बोल के। जब टेम्पो ट्रक में सामान लेके आ रहा था, गेट में डायरेक्ट गार्ड लोग रुका के वापस भेज देना चाहिए था ना। कंपनी भी मेरा पैसा को तो नहीं खाएगा ना। बाद में टेंट तोड़ने का बाद तो कंपनी बोले मेरा पैसा जो एडवांस दिया है वो भी वापस नहीं देगा और उल्टा हमको चार्ज किया है, मेरा सामान इतना बर्बाद हो गया, आप और पेमेंट करना है, हम कहाँ से देगा गरीब इंसान। तो ये एक इनजस्टिस हुआ है, एक ह्यूमिलिएशन हुआ है, जिसका वजह से हम वहाँ रेसिडेंट कमिश्नर का पास ये अरुणाचल भवन में हाउस का बाहर में हुआ था, बट हम भवन में जाके, क्योंकि मेन बॉस तो भवन में बैठता है ना, भवन में जाके हम उसको बात कर रहे हैं तो वो नहीं मान रहा है। वो रेसिडेंट कमिश्नर का टेबल में हम बैठ के किरण जी का जितना भी उसका सबॉर्डिनेट्स है स्टाफ लोग है उसको हम फोन कर रहे हैं। आज कुमजुम रीवा को भी बहुत बार फोन हुआ, नहीं उठाया। उसका बाद में वो सोनम सर को भी फोन किया, तो सोनम सर फोन को पिकअप किया, लेकिन बताया कि मंत्री जी मीटिंग में। हम सोचा शायद मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग बहुत जरूरी है ना, बहुत इमरजेंसी है, थोड़ा हम लोग को मदद कर देने से ठीक है। उनसे मदद मांगने का मेरा सिर्फ एक ही ये था कि मकसद था कि टेंट को नहीं तोड़ के वहां में जैसे तैसे सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा आने लोग को वहां बैठने देने से ठीक था। टॉयलेट बाथरूम के लिए भी हम कंपनी को मोबाइल टॉयलेट जो बेन गाड़ी जैसा, बास गाड़ी जैसा ना, चलता फिरता वाला टॉयलेट वो यूज करेगा बोल के मोबाइल टॉयलेट को भी हमको बुकिंग किया था। वहाँ गंदगी तो नहीं करना था और खाना उना भी पैकिंग में वहाँ आ जाना था, सब कुछ हाइजीनिक से बैठने देना था, क्योंकि इतना 200+ आदमी के लिए भवन का अंदर तो रूम था नहीं, हाउस में भी नहीं था, और इतना वहाँ में होटल लोग भी इतना ये होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वो अफोर्ड करना हम लोग जैसा माने कॉमन एक बीपीएल जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। हमने ना मंगो माने थोड़ा सा मदद उस समय में करने से ठीक है, क्योंकि हाँ 50 आदमी या 40 आदमी होने से तो उसका लेवल तक नहीं ले जाता है इशू को, हम लोग थोड़ा डोनेशन करके भी एडजस्ट करके भी उसको सॉल्व कर लेता है। लेकिन 100+ 200 ऐसे हो जाने से बहुत बड़ा बात बन जाता है ना, एक बस्ती का आदमी जैसा हो गया। तो हमना में आनी को मदद का नाम हम टोटल इग्नोर मारा है, टोटल इग्नोर मारा है। तब मेरा उसके लिए जो प्यार और जो इज्जत था, जो रेस्पेक्ट था, जो इतना साल से उसको हम मेरा देवता मेरा भगवान जैसा मान के हम बिना किसी कंडीशन का सपोर्ट करते रहा था, वो जो उसी में पूरा खत्म हो गया, ब्रेक हो गया इतना। तो क्योंकि लीडर हम लोग बनाता है सुबह शाम जाके खाना मांग के खाने के लिए, तो लीडर नहीं बनाता है। लीडर ऐसे जब मासेस को लीडर का जरूरी होता है, जब इमरजेंसी आवर में जरूरी होता है, उस समय में लीडर जो रिप्रेजेंट कर सकना है आपका बिहाफ में, मेरा बिहाफ में लीडर खड़ा होकर अगर कुछ देने के लिए नहीं तो कम से कम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए एक आवाज तो मुख से निकाल सकना है ना। टोटली माने मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करता ये दुनिया में, एज इफ लाइक वी आर नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस एटीट्यूड। लीडर लोग को क्या करने के लिए हम लोग वोटिंग मारा था होगा, तब हम रियलाइज किया है रात को ना, जबरदस्ती अंजिम लोग को छोटा छोटा होटल में 10-12 होटल में मैंने ऐसे रूम अलग अलग एडजस्ट करके सेटिंग करने का बाद में हम, मेरा तो छोटा सा एक सिंगल रूम वाला है, दिल्ली में सिंगल रूम भी 20-25 हजार भाड़ा होता है, उसमें हम जाके हम सोचा है ना, अरे इस लीडर को हम लोग क्यों वोट माराता होगा ना, तो लीडर को चेंज करना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। यहाँ नेशनल कैपिटल में अपना स्टेट से जब भी कोई आता है तो मोरम लगना चाहिए, तो मोरम लग के अरे कुछ देने के लिए नहीं होने से भी हम लोग ऐसे होता है ना, बुरा आदमी लोग हम लोग को प्यार से कुछ भी पानी एक गिलास भी नहीं देके भी पहचान के ना, अरे नो आलदुरे तकारिन चिंगुन दो हेम्प दो, ये इतना अच्छा लगता है, अरे मेरा लीडर हमको अटेंशन दे रहा है, बात कर रहा है, सुन के दिल एक खुशी होता है। तो कम से कम आप पूछने में आने से कितना अच्छा लगना था ना, लेकिन आप दिल्ली में बैठ के कान बंद करके आंख बंद करके बैठ के, उसका बाद में अभी इलेक्शन समय में आने से मेरा अरुणाचल के लोग मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं आप लोगों का नेता हूँ बोल के यहाँ बीच में घूम के वोट मांग के घूमने से आने लोग आप लोग वोट मारने दिल होगा कि नहीं पता नहीं, हम तो बिल्कुल मारने दिल नहीं होके। फिर हम इंटरनेट लीडर किसको एमपी बनाएगा बोल के हम एएसी से वापस आने का बाद में सोचना शुरू किया है ना, किसको एक अल्टरनेट एमपी बनाएगा बोल के लीडर ढूंढना शुरू किया है, तो लीडर नहीं मिला है, लेकिन वो लीडर लोग मैंने बहुत ज्यादा लीडर तो मैदान में था, एमपी उठेगा बोलने वाला,
लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमको उसमें वो चीज नहीं मिला है जो चीज हम ढूंढ रहा था। चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, आप बैकआउट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऐसा वाला आदमी चाहिए था, वो नहीं मिला है हमको। तो ना मैं उस ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम फिर बहुत लोग हमको भी ऑनलाइन कमेंट्स किया है कि नो चाहतो ये नो स्टैंड मत हो, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईवीएम में आपका नाम को पहुंचने दो, हम लोग आपको वोटिंग मारेगा, आपको एमपी बना के भेजेगा, आप वहां जाके हम लोग के लिए लड़िए बोला है। तो हम बाद में बहुत महीना 6-7 महीना तो हम भी सोचेगा थोड़ा टाइम लेगा, मुर्को कामा यो अबुर कामा दो नाम तीनाम गोसिन सफिशिएंट मा ija ure mungkin kan bamane nam gosin duma ko de aser gongo munyi kini tol jiro luar subon sri tol ke tol mo mistar munyi tol du taimo ani go ko de rot nama du chin mo nam gosin ija nam mo mada ne nama bara gor में बेच रहा था, तो 12 गोर दूध नाम तुंगो मुर्को मिलने से गोर बनाएगा, मुर्को नहीं मिलने से गोर को एक कोस उतार के आधा पाव लेंगरा होके बेचने से भी दिखने में मजा नहीं लगता है, मंगलाना है नाम रिमा 12 किलो इतना ज्यादा इंद्रा मंगला दूध नाम लासोंगो बार ये मेंको में नारू मेन को कांगो मुपाको चलो तब तू कोई भी हिम्मत करके इस टाइप का इशू में बात करने वाला नहीं निकालता है। किसी भी सबको देखो, या तो कोई कम्युनल बात करता है, या तो कोई रिलीजियस बात करता है, कोई सेकुलर बात करने वाला एक रेशनल माइंडसेट वाला लीडर ही नहीं है इस स्टेट में। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का साथ में आना चाहिए, ऑल राउंड लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ने वाला लीडर चाहिए। अगली दारों का पाकुमा सबको देखने से बिजनेस माइंडेड एक हाथ लो, मेरा फायदा होगा तो हम बोलेगा, फायदा नहीं होगा तो नहीं बोलेगा, ऐसे टाइप का सब हो गया। तो हर ओकेजन में, हर सिचुएशन में जहां हमको लगता है कि मेरा जरूरी, हम बिन बुलाए वहां पहुंच जाता है। कितना लोग धरना करके वहां बैठा है, हम गया है। पुलिस डिपार्टमेंट का ये कॉम्पेंसेशन ग्राउंड का भी आदमी लोग वहां धरना करके बैठा है, हम गया है। उसका बाद में हमारा GWS ने भी एक बार अष्टमी का जस्टिस के लिए धरना रखा, उसमें भी हम गया है। तो ऐसे होके हमको लगता है कि स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, ऑल राउंड ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ऑल राउंड स्टेट को जो कवर करता है वो इशू में हमको जाना चाहिए। किसी का जैसे पर्सनल इशू हो जाता है ना, वहां हम जाने दिल नहीं करते हैं। फिर वहां कभी कभी मीडिया लोग हमको घेरता है, आप वो इशू में क्यों आवाज नहीं उठाया, क्यों नहीं दिया। और कोई पति पत्नी झगड़ा होता है तो फेसबुक में लिखता है तो कोशीतल कहाँ गायब हो गया, ये इशू में क्यों बात नहीं कर रहे बोलता है। वो किसी का घर का डोमेस्टिक पर्सनल इशू में तो हम बात नहीं कर सकते है ना, हमको स्टेट का लार्जर इंटरेस्ट को चाहिए। स्टेट को जब अरुणाचल प्रदेश को किमिन को जब अरुणाचल को असम बनाया तब हम हल्ला किया है, और वो भी बहुत जोर से हल्ला किया है। जब कभी भी बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ है हम हल्ला किया है, जब ज्यादा गपलाबाजी हुआ है तब हम हल्ला किया है, जब क्वालिटी एजुकेशन का साथ में कॉम्प्रोमाइज किया गया तब हम हल्ला किया है, जब हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर का साथ में कॉम्प्रोमाइज किया गया तब हल्ला किया है, जब हेल्थ फैसिलिटी का साथ में कॉम्प्रोमाइज किया गया तब हल्ला किया। ये किसके लिए करता है, हम लोग सब के लिए। ये समाज में जहां में आप सब जीता है, हम भी जीता है, मेरा भी बच्चा लोग जीता है, मेरा भी परिवार जीता है, तो हम हल्ला कर रहे हैं, हम लोग सब के लिए हम हल्ला कर रहे हैं। हम दूसरा का जैसा आप लोग के लिए हल्ला कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उसमें भी मेरा अपना लालच है, क्योंकि हम खुद इसी समाज में जीता है ना। तो हमको सिस्टम साफ सुथरा चाहिए, तरीका से चाहिए। आप बदमाशी करने से भी, लूटने से भी एक दायरे में रह करके, एक लिमिट में रह करके करना चाहिए ना। टोटल 100% करप्शन आप लोग करेगा, उसका ऊपर में हम लोग 1-2 आदमी बात करने निकलने से हम लोग कोई माने भूत जैसा देखता है, ट्रोलिंग करता है, ये पागल है, बदतमीज है, बोलने नहीं जानता है, ऐसा वैसा आलना फालना बोलता है। तो इसीलिए वो चाहे जैसा भी हो सिचुएशन, वो अनगद अबोगद और भाई लोग बहन लोग, वो बेटी शीतल आओ शीतल अनि शीतल शॉर्टकट में, क्योंकि वहां भी आदमी रुक रहे तो ना, हम ऐसे वो शुरू हो जाने से बहुत डीपली चला जाता है ना। तो इसलिए मैंने वो एकता है ना, इजा MP कैंडिडेट वो रो को ना, MP कैंडिडेट रुसारे को ना, इजा यो अदक ब्लेम गेम है नेंदु को ना, एक नंबर ब्लेम गेम है ना। मैं जो वो इजा का जो पार्टी टॉर्च लाइट पार्टी सी आयु बीजेपी के अलायंस है, ये अगर भूत तुगमा पे लगे अला ना, बीजेपी एंटी क्रिस्तान यू, एंटी ट्राइबल यू यो मेनला, ऐसे फालतू में ये मतलब रूमर्स आदमी को कंफ्यूज कराने के लिए बोल रहा है। वो इसको हम टोटली नानीफाई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटा मोटा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अभी जस्ट जन्म हुआ है। बीजेपी इतना बड़ा पार्टी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको क्या जरूरी है इसमें, जिसमें एक ग्राम पंचायत मेंबर नहीं है, उसको अलायंस करके क्या करेगा। कम से कम अलायंस करने के लिए तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा ना। आप लोग तो मेरा गालो कम्युनिटी लोग काफी पढ़ा लिखा है, आप लोग समझदार है, सब कुछ को जानता है, यू आर ऑल मैंने वेल लिटरेट पर्सन। तो यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक भी नहीं है, तो अलायंस कैसे बनेगा टेक्निकली, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर सचमुच में बिना MLA का, बिना मिनिस्टर का, बिना MP का, बिना ZPM, बिना GPM का फालतू में ये पार्टी अलायंस से बोलने से, अलायंस होने से
आज माँ किरण का अगेंस्ट में इतना बड़ा, थोड़ा देर पहले हम बताए, इतना बड़ा दिग्गज नेता का अगेंस्ट में हमको जीएसपी क्यों टिकट देगा कॉन्टेस्ट करने के लिए? वो तो कभी नहीं देना था ना। एनसीपी ने नहीं दिया, एनपीपी ने नहीं दिया, पीपीए ने नहीं दिया, जेडीयू ने नहीं दिया। तो ये जीएसपी जो अगर जैसे वो लोग प्रोजेक्ट कर रहा है आप लोग को मिसगाइड करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, जो एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग चल रहा है ना, उसमें बोल रहा है कि ये जीएसपी जो बीजेपी का अलायंस है बोलने से, तो अलायंस होने से किरण जीजाजी जैसा इतना बड़ा चेहरा का सामने जीएसपी तो काम होता है जिसका कोई माँ बाप नहीं होने वाला पार्टी कैसे टिकट देके एक वो भी एक महिला को, एक नारी को उतार देगा मैदान में, जाओ किरण को हराओ बोल के। इसलिए ये लॉजिक आप लोग भी खुद अपना से थोड़ा कैलकुलेशन करके लगा लीजिएगा। कुछ भी कोई भी आके बोल देगा हाँ ये ऐसा है क्या वैसा है क्या, वो मत पूछिए ना, वो मेरा रिक्वेस्ट है। नंबर 2 एंड नंबर 3, अभी कुछ सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ये हो रहा है। जब हम जंतर मंतर में धरना कर रहा था उस समय में जो हम एक एग्रेसिव का साथ में, जो गुस्सा का साथ में, जो एक आक्रोश का साथ में जो हम स्पीच मारता था ना, वो स्पीच को पूरा स्पीच को नहीं लेके बीच बीच से छोटा छोटा काट के अभी उसको मेरा अलग यहाँ का कुछ पॉलिटिकल मीटिंग स्पीच को जोड़ के प्लस माइनस करके एडिटिंग करके तो शीतल देखो ऐसे बोलता है, तो शीतल ये बोला है वो बोला है बोल के और आदमी को कंफ्यूज कराने के लिए और एक कैंपेनिंग चल रहा है। उसको भी हम टोटली आप लोगों को बताता है कि ये मतलब हर एंगल से जब देख लिया कि पूरा अरुणाचल का आदमी लोग तो शीतल को अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, तो ये ब्लेसिंग को कार्स में कन्वर्ट करेगा बोल के, ये प्यार को मतलब नफरत में कन्वर्ट करेगा बोल के ये इस तरीके का एक कैंपेनिंग चल रहा है। इसलिए हम आप लोगों को मेरा मुंह से खुद बता रहा है कि वो अलग समय का, अलग सरकमस्टेंस, अलग सिचुएशन का वीडियो को आधा 2-3 वर्ड को काटेगा, उसका बाद में अभी का समय का प्रेजेंट में अच्छा बात बोला वाला को काटेगा, मिला देगा, उसका बाद बोलेगा ये तो शीतल का असलियत देखो। ये एक कैंपेनिंग चल रहा है। इसलिए आप लोग मेरा आने आप बोलो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को ना, हमको वोटिंग करना नहीं करना वो प्रायर आप लोग का पूरा अधिकार है, हक है। आप लोग हमको, आप बेटी को बहन को पसंद होगा, मेरा लीडरशिप को भरोसा होगा, मेरा पॉलिसी प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगेगा, मेरा डिटर्मिनेशन को आप लोग अच्छा लगेगा तो आप लोग वोटिंग करेगा। और अच्छा नहीं लगने से तो जितना हम बोलने से भी, जितना मीठा मीठा बोलने से भी वोटिंग तो नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका दिल से प्यार जो ब्लेसिंग जो सपोर्ट जो निकलना पड़ेगा तो हम ना में तो इसलिए ये एक है। और दूसरा अभी कुछ रूमर्स फैल रहा है एयर न्यूज कि हम जो एएसी दिल्ली में जाके गवर्नमेंट का साथ सौदाबाजी करके बहुत बड़ा बड़ा बंगला खरीद किया है, दिल्ली में फ्लैट खरीद किया, गुवाहाटी में फ्लैट खरीद किया, ईटानगर में बंगला खरीद करके बेच रहा है और सोना वोना ज्यादा पहनता है बोले। ये चूड़ी भी आई थिंक ये 20-25 साल पुराना होगा और ये ऐसे छोटा छोटा इयरिंग पहले से औरत आदमी है, थोड़ा मोड़ा तो पहनता है। और मेरा एक चेन है जिसको जब मेरा हस्बैंड जब जेल गया था तब भी हम सिक्योरिटी रख के पैसा उठा के हम हस्बैंड को बेल निकाला था। वो हम लोग सी जूह ना, आप लोग उसको गालों में क्या बोलता है, ऐसे जूह डिजाइन वाला चेन एक है मेरा, सुर्गेन, हाँ सुर्गेन डिजाइन वाला चेन एक है, वो हम पहले से पहन के आया है। अभी मेरा उम्र 43 प्लस 44 ईयर्स है, लेकिन वो हम पिछले 20 साल से पहन के आया वाला चेन है। उसको अभी बदनाम करता है कि एसी से वापस आने का बाद ये ऐसे सोना पहनता है, ऐसे गोर में बैठता है, ऐसे गाड़ी भी नहीं है अभी तक। ये जो गाड़ी अभी हम ये इंडिया में घूम रहे ना, उसको भी बोल रहा था 70 लाख का गाड़ी में घूम रहे है। ये मेरा 80 का है, कहाँ गया 80? ओ इधर है 80 तो रहा। ये एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है और आपको गाड़ी का आरसी भी चेक करने से पता चलेगा 80 का नाम से है। मेरा खुद का पास तो दंग का गाड़ी भी तक नहीं है चलने के लिए। बाद में आप लोग एमपी जिताने से, गवर्नमेंट गाड़ी देने से तो चलने मिलेगा और नहीं तो अभी तो हालत ही नहीं है। हम सच्चा मेंटेन चीज लगे तो ऐसे होके मैंने फालतू में हमको ग्रिलिंग किया जा रहा है। हम माने मुंह फाड़ के सीना तान के बताता है कि ऐसी समय में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से बहुत ज्यादा टेम्पटेशन आदमी पूछने आया था, शीतल बहन नो मुकुरनन कामा रे नो क्यों इतना बड़ा गवर्नमेंट को पंगा ले रहा है, लड़ाई कर रहा है। मत लड़ो, पंगा मत लो। आप अपना फैमिली के लिए सोचो ना, बच्चा के लिए सोचो, पति के लिए सोचो। नो सारा अरुणाचल का टीका लेके रखा है क्या? नो क्या जरूरी है बोल के ना, कितना हमको टेम्पटेशन आया है। हम बोले मेरा पास में स्टेट गवर्नमेंट को बात करने का 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जंतर मंतर में हमको टू द चेयरपर्सन एएसी एड्रेस करके लेटर भेजो, डाक भेजो कि हम लोग चलो राउंड टेबल बैठ के टॉक करेगा। कंडीशन नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो भी कोई उसका एम्बेसडर बन के जंतर मंतर में आइए, लाइव वीडियो में, लाइव कैमरा में हम लोग बात करेगा इशू को लेकर के। कंडीशन नंबर 3, सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट आप अपना तरफ से कर दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट देना नहीं देना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट आपका तरफ से रिकमेंडेशन कर दीजिए कि करप्शन हो रहा है, सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए बोल के। कंडीशन नंबर 4, लखनऊ में वो जो बेटा जो दाढ़ी मूछ वाला जो निकल के इतना मेरा कैरेक्टर का ऊपर एसासिनेशन कर रहा था ना,
उसको इतना ज्यादा एनजीओ, इतना ज्यादा ग्रुप ने एफआईआर दिया है, उस एफआईआर पे एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको आप लोग लेके आइए, क्वेश्चनिंग कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, रियलिटी को, फैक्ट को फाइंडिंग कीजिए। कंडीशन नंबर 4, कौन लोग है अरुणाचल में बैठ के जो मेरा करेक्टर को एसासिनेशन कर रहा है, हमको झूठा केस में फंसा के पुलिस से सामून इशू करवा रहा है, ये सबको फाइंड आउट कीजिए। ये लोग को आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? इतना ज्यादा मतलब लोगों का इतना ज्यादा एफआईआर कंप्लेन आने का बावजूद उसको क्यों आप लोग फाइल को मतलब साइडलाइन कर रहे हैं? ये 5 चीज को क्लियर कीजिए, तब हम लोग टीम एएसी हंसी खुशी से सिर उतार के हम लोग भी ऑनरेबली एग्जिट चाहता है, ऑनरेबली एग्जिट होकर अरुणाचल आएगा, या फिर सीएम साहब खुद बात करने आएगा, या किसी उसका रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, जिसको भी भेजेगा ऑन कैमरा जंतर मंतर में बैठ के बात करेगा। ये 5 कंडीशन हम दिया। उसका अलावा हम कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं किया है। कोई भी जो भी कोई आया था वहां में पूछने के लिए, वो लोग को भी हम कल जरूरी होगा। ज्यादा हमको अभी हम कैंडिडेट उतरे बोल के बदनाम करने के लिए, आप लोग का नजरों में हमको गिराने के लिए, कंफ्यूज कराने के लिए, बदनाम करके अभी जो सोशल मीडिया में ऐसे फैला रहा है ना, कुछ लोग अभी पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, अरे तो कौशिकल दीदी को अच्छा औरत है सोच के हम लोग वोटिंग करेगा सोचा था, सपोर्ट करेगा सोचा था, लेकिन अभी उसका असलियत को सुनने का बाद बहुत घिन लगता है, हम तो और शीतल को वोट नहीं मारेगा। ये जो इंसान लोग मेरा इमेज को, मेरा हार्ड अर्न इमेज को और मेरा इतना तकलीफ करके संघर्ष करके जो आज आप लोग का दिल में हम जो प्यार कमाया है ना, इससे बड़ा दौलत दुनिया में और कोई दौलत हो ही नहीं सकता है। बिरला, टाटा, अंबानी, रिलायंस वाला लोग भी बहुत पैसा वाला होता होगा, लेकिन जितना प्यार तो कौशिकल आज अरुणाचल का हर एक आने आपको का दिल में कमा के रखा है। हम अपना आपको सबसे अमीर इंसान सोचता है आज का डेट में ना, क्योंकि आप सबका दिल में हम बसता है। उसको मेरा प्यार को छीनने के लिए ये साजिश रचा जा रहा है। इसलिए नाम अनगदम अबोगदम तो दोजी जे को दोलू हम यहाँ आया। मेरा भाई पै कर सो भाई हमको बताया था अन्य दोजी जे को दोलू अकलाना है, नो बोलो आप लोग आप मेरा दोलू में अच्छा से जाइए बोल के भाई हमको मैसेज भेजा है। भाई हमको उस दिन योमसा में मिलके भी मदद किया है, और अभी भी हम कल आलो में ये जनरल मीटिंग हम लोग रख रहे हैं ना, आलो टाउन में जनरल मीटिंग रख रहे हैं। या भाई हमको बुकुरा अन्य वो उबक कुमा मुर्को अबर को सिंचें कुमा मीटिंग वालो साउंड सिस्टम हम सिन अन्य वो नो ngom angin मदद मन प्रयास कर भाई हमको आज सुबह भी आके मदद करके दिया है। मेरा भाई इतना प्यार का मेरा वो भाई का गाँव में आया, मैंने हम अपना गाँव में आया है ना, कितना खुशी है हम, तो इसलिए बहुत ज्यादा बोलने मन होते जा रहा है बोल रहे तो ना मैंने वो गान गए आप गए सी पूरा टोटली लून आओ शीतल को बर्बाद करने का ये एक साजिश है। तो हम हाथ जोड़ के आप लोग को हम विनती करता है कि ये सब बातों को विश्वास मत कीजिए। आप लोग अपना अंतरात्मा से पूछिए ना, मेरा जैसा इंसान जो कभी ऐसा कर सकता है, और दुनिया में कोई चीज कभी नहीं चुकता है। यहाँ तक कि हस्बैंड एंड वाइफ बेडरूम में सोता है, एक साथ सोता है, वो भी नहीं चुकता है, सबूत में बच्चा निकल जाता है। तो दुनिया में झूठ बोलने का जगह नहीं है, चोरी करने का जगह नहीं, कुछ भी चीज छुपाने का नहीं। अपना मुंह से निकला हुआ आवाज भी बाद में दीवार से टकरा के वापस आपका कान में पहुंचता है, ऐसा होता है तो ना। तो इसलिए यहाँ झूठ बोलने का जगह नहीं है। जो कोई अभी बेकार में उससे सौदा किया होगा, पैसा लिया होगा, अगर सचमुच में मीडिया में कोई आके ऐसा बोलता है तो हम तो हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया, भाभी, दीदी, अम्मा, बाबा, जो भी आपको ये प्लीज आप प्रॉपर एविडेंस का साथ आइए, प्रॉपर एविडेंस का साथ आइए। इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नियम का अनुसार आप किसी भी स्टैंडिंग कैंडिडेट को पर्सनली आप इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते हैं, किसी का ऊपर डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। अगर कल को मेरा क्या पता हमको आदमी पसंद नहीं होके वोट नहीं मार के हारने से भी हम वही पर्टिकुलर आदमी को ब्लेम दे सकता है, उसका ऊपर में हम डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है। आपका वो स्टेटमेंट देने का वजह से हम इलेक्शन हार गया बोल के, क्योंकि वो मेरा राइट बन जाएगा ना। तो इसलिए किसी को भी मेरा ऊपर में पर्सनल अटैक करने का कोई राइट नहीं है, वही हम बोल रहे हैं। और जो भी कोई ये पर्सनल हमको इतना मतलब एक विंडिक्टिव एजेंडा में लेके हमको ही खत्म करना है बोल के जो एक गंदा पॉलिटिक्स रचा के गेम प्लान करके कर रहे हैं, इसको तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग अपना आप सुधर जाइए और सके तो हो सके तो मैंने गलती में बोला था ना, जानबूझ के बोला था, एक बार क्लियर कर देने से और भी अच्छा है। नहीं तो ज्यादा डीपली अगर आप लोग जाता है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं बचा सकेगा जब कानून का सामने में चीज आएगा तो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आज मेरा ओपोनेंट कैंडिडेट को भी हम पर्सनल अटैक करने का मेरा राइट नहीं है। वो इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमको प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, इवन मेरा सपोर्टर फॉलोवर लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी मेरा ओपोनेंट कैंडिडेट का ऊपर में आप लोग पर्सनल अटैक मत कीजिए बोल के। अच्छा लगने से वोटिंग कीजिए, अच्छा नहीं लगने से उसको बोल के भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि रिमोट तो आपका उंगली में है। 19 अप्रैल को डिसीजन आप खुद देगा, आपको जिसको पसंद है आप उसी पे तो मोहर लगाएगा ना।
जिसको पसंद नहीं है आप उसको वोट भी नहीं देने जा रहे, गाली देके अपना मुंह को क्यों गंदा करना है हमारे है। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स हम आप लोगों के सामने में क्लियर करना था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएलए इलेक्शन को मेरा ये एमपी इलेक्शन में प्लीज मिक्सअप मत कीजिए। एमएलए में आप लोग जिसको पसंद है आप लोग प्लीज वोटिंग कीजिए, अपना एमएलए खुद चुनिए, वो आप लोग का पूरा हक है। उसमें हम टोटली माने चौका का ये हम लोग का इसी में इमिक बोलता है, चौका का बातचीत में हम बरामदा में बैठ के वहां से हम शोर नहीं मचाएंगे। ये एमपी का इलेक्शन जो एंटायर अरुणाचल का फ्यूचर को लेके है, हम लोग बहुत ज्यादा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए हम लोग पॉलिसी प्रोग्राम डिस्कस करना है, वो भी नेशनल पार्लियामेंट हाउस में जाकर के वहां डिबेट करना है। सर्टेन कुछ रूल्स है जो कि स्टेट के लिए हानिकारक है, वो रूल्स को भी वहां अमेंडमेंट करवाने के लिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको परस्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज तक बेटा लोग परस्यू नहीं करता है, पर्टिकुलर चीज जो उनको करना चाहिए उसको साइडलाइन करके रखता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और बड़ा बड़ा ठहाका मारता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है बोलता है। इट्स ऑल अबाउट यू पीपल कि आप लोग हमको कितना बारीकी से, कितना माइनेटली आप लोग मेरा ऊपर आज तक रिसर्च किया होगा विद इन दिस 2 years। 2 साल का अंदर में मेरा आने आप लोग हमको कितना करीब से देखा होगा, कितना करीब से समझा होगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन होने से मेरा स्टार्टिंग से जर्नी को लेकर अभी भी रिवाइज कीजिए, तो 19 अप्रैल पहुंचने तक सफिशिएंट टाइम है। रिवाइज करके आप लोग क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए न बेटी शीतल, बहन शीतल, कहीं भी चूल का टुकड़ा जैसा कहा में कभी गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ में और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अपना क्वालिटी, अपना विजन को फोकस करके बात नहीं करते, कुछ लोग ज्यादा ही कम्युनल पॉलिटिक्स भी खेल रहा है, कुछ लोग ज्यादा ही माने रिलीजियस पॉलिटिक्स, रिलीजियस कार्ड भी खेल रहा है। हम तो बोलता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब इंसान कम्युनल हो जाता है भाईचारा खत्म हो जाता है। जब इंसान धर्म के लिए, धर्म का नाम पर अंधभक्त बन जाता है, तो अपना भाई भैया दादा दादी को भी नहीं पहचानता है, एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। इसलिए हमको सबसे पहले हमारा सर्वप्रथम धर्म क्या है, एक इंसानियत होना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी होना पड़ेगा हमारा अंदर में। हम अच्छा इंसान होगा तो हर धर्म हमारा लिए पवित्र है। हम खराब इंसान होगा तो कोई भी धर्म में आप घुस जाइए, लेकिन आप उस धर्म का लायक नहीं होगा। इसीलिए मैंने वो रिक्वेस्ट है, क्वालिटी को फोकस कीजिए, पहले भी हम बार बार बोला है, और क्वांटिटी में मत जाइए। और अगर जबरदस्ती इलेक्शन का समय में आप लोग का मन को भटकाएगा, आत्मा को भटकाएगा सोच के बड़ा बड़ा गच्छी लोग आ रहे, तो क्योंकि पहले बताया ना, हम छोटा सा मिर्ची, इतना बड़ा वो मिर्चा का सामने में, अच्छा एक मिर्चा कम तक है, यहाँ से और एक मिर्चा आ गया। फॉर्मर सीएम, स्टेट का सबसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ, पॉलिटिकल जर्नी में एक जीपीएम ग्राम पंचायत मेंबर से शुरू होके हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिक्स होता है स्टेट का चीफ मिनिस्टर। उससे बड़ा तो और कोई पोस्ट होता नहीं। तो जो इंसान स्टेट का चीफ मिनिस्टर का कुर्सी देख चुका है, वो तो बेचारा एज भी हो गया, हेल्थ भी इतना परमिट भी नहीं भी करता होगा, अभी आराम से घर में बेड रेस्ट करके पोता पोती लोग का साथ में टाइम पास, बागीचा उगीचा, फ्लावरिंग करके बैठना चाहिए था। अगर वो एमएलए करने दिल नहीं था, आराम से छोड़ देना चाहिए था, ऑनरेबली एग्जिट करके समाज में सबका नजरों में रिस्पेक्ट कमाना चाहिए। 4-5 दिन पहले तक हम एमएलए ला रहे हैं, एकदम स्ट्रांगली एमएलए ला रहे हैं बोलने का बाद, विदाउट एनी प्लानिंग, कुछ भी प्लानिंग नहीं, अचानक से हम एमपी कैंडिडेट आ रहे हैं बोल के हमको सडन शॉकिंग दीजिए, क्योंकि मेरा इन लॉस है वो, तो हम तो उसके लिए सोचते हैं कि मेरा आतो है तो आतो जी आप तो रेस करना चाहिए था। हम लोग को बहू बेटी को काम लगाना है ना, भाई बहन को काम लगाना है। चलो मो निकम पकू मो आनी गो रेस रेको मो गे आइडिया का मो का आइडियोलॉजी हम ना मो शेयर रे गाइड मोरे ऐसे हम एडवाइजर बन के आप लोग का मेंटर बन के गाइड करेगा, आपको हम रास्ता दिखाएगा, आप काम करो बोल के। भाई बहन को भेजना है ना, बहू बेटी को भेजना है। कहाँ एक छोटा सा बहू का साथ लड़ने के लिए आ गया, समझ में नहीं आता है। और मकते का साथ में तो मकते को मेन गुस्सा है कि दिल्ली में हम लोग को इतना इग्नोर मारा, इसलिए हम मकते को लड़ने के लिए आया था। उसका बाद में अभी देखा है तो इतना ज्यादा पॉलिसी प्रोग्राम उसका अंदर में भी लैप्सेस है। वो हम बाद में एक बड़ा प्लेटफॉर्म जहां हम पब्लिक स्पीच होगा वहां में हम डिटेल्स में बात करेगा। यहाँ तो गांव में आप लोगों को मेरा आने आप लोगों को मिलने आया है ना, ज्यादा एग्रेसिव यहाँ होना ठीक नहीं है। सिर्फ आप लोग से हम ब्लेसिंग मांगने आए हैं, और आप लोग को हम हाथ जोड़ के विनती करता है कि प्लीज अपना बेटी को एक बार आप लोग दिल से आशीर्वाद दीजिए और प्यार को हमको दीजिए। 2 साल से जो अन्य लोग मेरा साथ रो रहा था ना, जो अन्य लोग मेरा लिए प्रार्थना कर रहा था, जो अब वो लोग हमको देख के बेटी QR कोड भेजो तो बोल के 5-10 हजार जो भेज रहा था, वो अन्य आप लोग को हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही प्यार को यहाँ EVM मशीन तक पहुंचा दीजिएगा 19 अप्रैल तक। और छोटा मोटा पार्टी होने से भी टॉर्च लाइट को सब लोग, हम लोग 5-6 लाख आदमी पूरा टॉर्च लाइट जलाने से अरुणाचल से पूरा अंधेरा हट जाएगा, सब उजाला हो जाएगा। करने के लिए आप लोग को सॉरी आप लोग को छोड़ के
के जाने मन नहीं और बहुत ज्यादा बात करने मन नहीं, लेकिन वहाँ भी रुक रहा है ना। हम ऐसे नॉन स्टॉप बोलने से ना, स्टार्ट हो जाने से रुकता नहीं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड उधर भी रुक दे रहा है ना।